I'm Sana Rais Khan and you're watching me on Times Now. Well, only on Times Now Teletalk today I have a really special guest. So let me first welcome Sana Rais Khan, जिनको आपने देखा था बिग बॉस में, जो कि बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से अपना पॉइंट भी रखती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से गेम को एंड करके अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन भी कर चुकी हैं. Sana, firstly, welcome on Times Now. Hello. Well, did I say right that you have moved on from the Big Boss fever, or what is it like? वो तो that happened right. I mean, the moment I was out of the house, I immediately got back to work. मैं तो अपने practice में लग गई, and I never got carried away with anything. Because as I've always maintained, I was already famous as a lawyer, but pan India fame देख के ऐसा नहीं है that I got carried away with the fame and you know इधर उधर मैं सोचूं. मुझे पता था कि my profession is my priority, it remains my priority. तो मैं तो अपने काम में लग गई and I know it's just वो एक game है just for fun. I even went there with the intention just for an experience. तो एक experience के तौर पे मैं गई और but tell me one thing here, because you know actors के लिए हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है उनको अपने करियर में पुश चाहिए तो उन्होंने वो you know रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया या वो मासेस को रीच करना चाहते तो उन्होंने मतलब यू नो देयर आर मल्टीपल रीजंस. व्हाट वाज योर रीजन और मे बी हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन द मेकर्स हैड अप्रोच्ड यू एंड सेड कि सर ना हम चाहते हैं कि आप कंटेस्टेंट की तरह घर में एंटर करें? माय इनिशियल रिएक्शन वाज नो. आई हैड I mean, obviously, I said no initially, and I did not want to do it. But I don't know, instinctively, you know, in fact, it was an overnight decision for me. ऐसा हुआ कि पहले मैंने ना बोला, फिर बाद में आज शाम में जैसे होने वाला था, like सलमान खान के साथ स्टेज पे फर्स्ट डे था, आज शाम में बस जाना है. मैं सुबह सुबह just called them and like, okay, I'll do it. It was a very instinctive decision, and you know, it's a very scary thing, honestly. किसी और के लिए कोई इंसान, मुझे लगता है कोई इंसान इतना जल्दी ऐसे एक दिन में तो उठ के नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ. It's a very big show, everybody would be watching me. कोई भी डरेगा हर इंसान. But that also actually kind of, I mean, I discovered my bold side, you know, because it was a very bold decision to suddenly go out there. And, you know, I just went there with no preparation. I'd never seen the show because I'm from a educated background. Intellectual चीज़ें मैं ज़्यादा consume करती हूँ. मैं show कभी देखती भी नहीं थी. But I just for an experience, I thought, okay, let's see, like let's discover. Because I heard about it, I thought, why not just give it a shot? And I've always maintained, I never went there with any intention to win, because my commitments, obviously, मेरे prior commitments बाहर थे. तो मैं बस ऐसे इंटेंशन से गई थी कि जाती हूँ कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस लेके अंदर होता क्या देख कर आ जाऊंगी. बट यू नो सरप्राइजिंगली माई जर्नी वाज क्वाइट अ लॉन्ग जर्नी जो मैं 2.5 महीने तक थी अंदर. एंड सो वो वैसा हो गया अनएक्सपेक्टेडली. बट यू नो ऑल एंड ऑल एक ठीक है डाइवर्स पर्सनालिटी हूँ. मेरी दूसरे ट्रेड्स भी देखने को मिले, लाइक मैं डांसिंग एंड यू नो मैं जैसे हाजिर जवाब हूँ. कभी कुछ रोस्ट करना होता तो मैं इमिजिएटली कर दूँ. ये सब चीज़ें थी जो देखने को मिली. बाकी फेम के इंटेंशन से तो नहीं, बिकॉज फेम तो था ही ऑलरेडी. बट ये था कि काम को एक यू नो ऑल इंडिया रिकग्निशन मिला एज अ लॉयर. मेरे जितने अच्छे माशाल्लाह काम हुए, अचीवमेंट्स हुए, वो भी एक हुआ है. और मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया कि कैसा होता है यू नो like you know internal politics. And very funny thing is कि मेरा काम है लोगों को बाहर निकालना. मैं जेल से निकालती हूँ. तो वो टॉक्सिक वो you know बिग बॉस हाउस इज आल्सो नो डिफरेंट. वो भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट ही है कि आप ऐसे लोगों के बीच में कैद हो. you know you are actually after a point for a person like मैं ट्रैवल फ्रीक. I travel here there. मतलब मैं एक जगह पे एक दिन में रह ही नहीं सकती हूँ. even my work demands you know me traveling here and there. Yeah. And you know every day different cases, different thing. वहाँ पे बहुत थोड़ा सा obviously वहाँ पे तो बहुत monotonous हो जाता है. But what was the most I wouldn't say bizarre, but what was the most shocking thing that you had to experience there? Maybe contestant का कोई behavior या फिर कोई ऐसी चीज जो लोग करते थे, जैसे you said politics या you know side पे बैठ के वो रोना धोना. What was the most such a thing जो आपको लगता था कि मतलब why like funny था? Funny तो मैं फनी शॉकिंग से ज़्यादा फनी मुझे जब लोग अंडों के लिए लड़ते थे तो मैं सोचती अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ पे खाने अंडे के लिए लड़ रहे हैं. क्योंकि बाहर तो मैं कैसे फाइट्स बाहर तो मैं क्या चीज़ों से डील करती हूँ, कैसे केसेस के लिए डील करती हूँ. सो आई समटाइम्स ऑब्वियसली आई वुडंट डिनाई, आई यूज्ड टू बी अ स्पेक्टेटर समटाइम्स, जस्ट आराम से इन द कॉर्नर सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग. ओके अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये बंदा ऐसा भी रिएक्ट करता है. माई सेल्फ वुड बिकम ऑब्जर्वेंट लोगों के बिहेवियर को लेके. तो आई वुड एंजॉय. बट अब जर्नी खत्म हो चुकी है. बट अब मैं आपसे एक राज की बात पूछ लेती हूँ. क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट था जब सना ने साइड पे बैठ के आग में घी लगाने का काम किया और बस बैठ के तमाशा देखा है? कभी ऐसा था क्या? बिकॉज़ आई एम श्योर मैं घी का तो मुझे लगता है इवन ऑडियंस विल एग्री, इवन यू विल एग्री, वो तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया आग में घी.
पर हाँ ऐसा होता था कि मेरे वजह से मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें सिचुएशन होती थी, मैं हमेशा सेंट्रल होती थी उस चीज को लेके, कभी कुछ किसी का झगड़ा हो गया, कभी कुछ, तो यू नो आई वुड somehow you know sometimes end up becoming the reason or the prime reason for it because of my decision. जैसे कभी मैं एज अ संचालक कुछ डिसीजन दे दूँ, या कभी मैंने कुछ अगर मुझे कोई टास्क है कि मुझे किसी को हटाना है किसी रेस से, तो मैंने किसी को हटा दिया, तो कोई यू नो somebody would get offended and ये वो, एंड एंड में तो ऑफ कोर्स मैंने एक बहुत बड़ा ही एक डिसीजन लिया था कि राशन कट करो, मुझे काम नहीं करना है, बिकॉज आई एम लाइक दैट, बिकॉज आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. तो वो सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से घर हमेशा कभी कभी मेरे अगेंस्ट हो जाता था, बट आई वुड हैंडल दैट ऑल्सो वेरी कामली. आई वुडंट लाइक यू नो I would be like okay ठीक है, you guys feel offended, that's okay, आप काम here for myself, और मैं जब तक रहूँगी मैं अपने टर्म्स पे रहूँगी. And if you saw I was never gang up, मैं वो सब चीज़ों में नहीं थी. yes. किसी का ग्रुपिज्म या ये वो, इनफैक्ट पीपल वुड वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप बिकॉज दे सॉ दैट आई एम क्वाइट केपेबल एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बिकॉज मैं बोलने में तो एक्सपर्ट हुई, मैं लॉयर हूँ. बाकी कुछ टास्क दो तो आई ऑलवेज विन द टास्क ऑल्सो. कभी कुछ ऐसा हो गया डांस, कभी कुछ, ये सब एक्टर्स लोग के लिए ईजी होता है कि हाँ डांस हो गया, कुछ ये हो गया, तो लोग ईजिली फिर वो लोग करते हैं. बट मी आई एम नॉट इवन फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, नॉट डू इट, आई वुड एक्सेल इन एवरी टास्क दैट वाज देयर. But then was it like participating in Big Boss, did it one help you when you came out of the house, and two, did it affect your work anywhere around? Alhamdulillah, I did not let it affect my work because of the fact, because of the way I conducted myself on the show also, and that's how I am in reality also. Like I did not change myself for the sake of camera or fake anything out there, you know, just for the sake of camera. मैंने कुछ ऐसा अनाप शनाप ना चीज़ें बोली ना, मैंने आई नेवर यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज हो गया या मेरा डिसेंसी हो गई, वो सब चीज़ें थी ही हमेशा से कैमरा पे भी. और मैं कभी यू नो बिलो द बेल्ट किसी को आई वुड नेवर हिट, मैं कभी किसी को ना बोलती थी, ना आई वुड टेक ऑल्सो एनी शिट फ्रॉम एनीबडी. इनफैक्ट अगर एक या दो बारी किसी ने मेरे प्रोफेशन पे कुछ बोल दिया तो मैं ऐसे में भिड़ जाती थी, मैं बोलती थी हाउ डेयर यू कमेंटिंग ऑन माई प्रोफेशन. मेरे ये प्रोफेशन की बहुत इज्जत है. इनफैक्ट इवन सलमान खान you know has immense respect for the profession that I belong to, and that is why even he was always very respectful. मतलब मेरे साथ वो बहुत रिस्पेक्ट से थे, तो अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं छोड़ती नहीं थी. तो जिस तरह से मैंने अपने आप को कंडक्ट किया, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट आई एम सुप्रीम कोर्ट लॉयर, एंड ऑफ कोर्स इन द जजेस वॉच द शो एंड ऑल दैट. सो मैं उस हिसाब से मेरी और जिस पर्सनालिटी भी डिग्निफाइड है ही. What was their reaction when they later on maybe obviously आपने का instinctive decision था, पर जब आप बाहर आई, what was their reaction? Yeah, I feel that you know people I mean in general I feel even my colleagues and in my profession, in my fraternity, in my industry, legal industry, I feel people are appreciating the fact that I experimented, I did something different, like you know something which is different from the usual mundane, like routine से कुछ अलग किया हटके. और ऐसा तो है नहीं कि मैंने मतलब बाहर निकल के मैं आई गॉट कैरिड अवे विद द फेम, आई सेड ओके बाय बाय लीगल प्रोफेशन एंड हेलो एक्टिंग में जाऊंगी एंड हेलो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नाउ आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस. ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने, जबकि आई गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम यू नो फ्रॉम मेनी नोन पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट यू आर वेरी प्रिटी, you should definitely give this a shot now, ये वो. but my priority और मेरा passion is law is in my blood. So वो चीज़ तो of course you can't let go. What makes you happy I have a very curious question and I'm sure fans भी जानना चाहेंगे. आप जब घर में थी ना, तो एक तरीके से नॉट ओनली ऑन यू बट सब कंटेस्टेंट्स पे मीम तो बहुत आम सी बात थी. डायलॉग्स पे मीम बनते थे, एक्शन पे मीम बनते थे, डांस पे मीम बनते थे. सो व्हेन यू केम आउट ऑफ द हाउस, फुर्सत फरागत में कभी देखने का मौका मिला? I feel so blessed, mashallah. I'll tell you, I'm so blessed that I have such a busy schedule that I haven't seen any episode. No, not episode, but did you see any meme or any? मैंने कुछ ऐसे मीम देखे जो मैंने किसी को बैक आंसर किया और उस पे मीम बन गया. जैसे मैंने किसी को कुछ बोल दिया, क्योंकि I was very famous for my one liners. जैसे कभी कोई कुछ बोलता था तो मैं बैक आंसर कर दूं तो उस पे कोई मीम बन गया, मैंने वो देखा है. But people are saying that you trolled so and so this particular contestant so much that because of you this person is now joker. ऐसे भी मुझे लगा कि तुमने इस contestant को जोकर बना दिया, तुमने उसको इतना ट्रोल किया सना, तुमने वो contestant को बहुत ट्रोल किया. तो ऐसे भी मैंने सुना है कि मेरे वजह से मैं दूसरों के ऊपर बहुत बैक आंसर करती थी तो वो मीम्स बन जाते थे. बट दीज थिंग्स हैपन सो स्पॉन्टेनियसली इनसाइड द हाउस दैट यू डोंट इवन नो. एंड आई स्पेशली आई डिडंट नो कि बाहर ऐसे हो जाता है, मीम बन जाता है. बिकॉज आई विल टेल यू ऑनेस्टली, आई हैड नो पीआर टीम, मेरा ऐसा कुछ नहीं था. मेरा बहुत ऑर्गेनिकली सब हुआ है. मैं तो मैं ना कोई पीआर स्ट्रैटेजी ना कुछ करके गई थी, मैं ऐसे ही ऐसा था क्या जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या जब आपको अप्रोच किया था, when you were in talks for it, did you have any clauses क्योंकि ये मैं करूंगी और ये मैं नहीं कर सकती? Like did you keep those things in front of the makers or? Yes, absolutely. मेरा इनफैक्ट मैं बहुत I had a few reservations. I in fact even told the makers कि मुझे बाहर मेरे केसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम, जो मुझे मिल रही नहीं थी, जिस वजह से मैं थोड़ी स्ट्रेस हो जाती थी शो में कभी-कभी. Because every week when I was getting saved because thanks to the votes obviously, but for me it was a very it would become a
different experience altogether because I did not go with the intention to stay for a very long period because outside मेरा काम बहुत है और मेरा schedule बहुत tight रहता है. मैं बस कुछ time के experience और fun के लिए गई थी, तो every time I would get safe, every week of course मुझे बाहर का stress रहता था जो मुझसे इन्फॉर्मेशन पहले मतलब नॉट एज अ ओरल अग्रीमेंट ऐसा हुआ था कि मुझे केसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बट वो नहीं हो पाता है अंदर. एंड आई डोंट इवन ब्लेम द मेकर्स एक्चुअली. वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्प्लीटली कट ऑफ रखना ही उनका काम है. इसी तरह से इंसान देन अंदर दे लूज देयर माइंड और झगड़ा होता है. बट टेल मी वन थिंग, बिकॉज नाउ द जर्नी हैज एंडेड, बट देन फॉर सम जहाँ जर्नी अभी भी चल रही है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया ड्रामा आता है, ब्रेकअप, पैचअप, लड़ाई झगड़ा, व्हाटएवर. For you, I think if I'm not wrong, your life has moved ahead. You have had good cases in your hand. You've moved past the Big Boss house. But then I remember this one news that came while you were inside the house. She's lying. She wasn't Aryan Khan ke case pe lawyer. She's just using it as a clickbait, like a fame to claim. It's a very nice question actually. So it's good that I clarify. First of all, who said that I defended him? Did I ever say that on record? In fact, in the very first episode, I think it was shown somebody, Munawar or somebody asked me about the cases that I've dealt with. मैंने बहुत brief कुछ cases के बारे में बताया. I didn't even give history of my जो इतने high profile cases मैंने किए. So I had just mentioned about this drugs cruise case. Drugs cruise case, and I said that very clearly. इसमें मैंने first bail कराया था, and in fact आर्यन से पहले मैंने अपने client का bail कराया था. ये मैंने हमेशा record पे बोला, जिसकी वजह से help हुई है दूसरे accused की in that case. So I never even took. Now the fact remains यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्यन खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आर्यन खान ने कभी कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, बिकॉज आर्यन इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओके कि मैंने किया है सबसे फर्स्ट बिल इस केस में. कोई थर्ड पर्सन फॉर हिज 5 minutes ऑफ फेम कम्स इन द मिडल और वो आके बोलता है हाँ कोई भी अपने पब्लिसिटी के लिए. तो ऐसे लोगों को इनफैक्ट इवन टू कमेंट ऑन दीज पीपल इज लाइक स्टूपिंग सो लो, एंड टू डिग्निफाई देम विद अ रिस्पॉन्स ऑल्सो इज लाइक यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम और उनको और पब्लिसिटी दो. तो ये सब लोग तो है ही, मतलब सी देयर आर पीपल जो अपने फेम 5 minutes फेम के लिए आके कुछ भी स्टूपिड नोटिस का पब्लिसिटी करेंगे विच इज नॉट इवन मेंटेनेबल. डू यू थिंक व्हेन आर्यन हैज नो प्रॉब्लम एंड आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई थर्ड पर्सन का भी कोई नोटिस भेज भी सकता है. एंड आई ऑफ कोर्स लेट मी क्लैरिफाइड ऑन रिकॉर्ड, ऐसी कोई नोटिस मेरे घर पे ना कभी पहुंची ना मुझे कोई मिली है, पर मीडिया में ऐसी कोई नोटिस के बारे में बराबर बोला गया कि मैं नोटिस भेज रहा हूँ सना को ये वो, जबकि किसी में हिम्मत भी नहीं है, ना कोई कुछ कर सकता है. समझ रहे हो? बिकॉज नाउ इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड यार कि मैंने किया है फर्स्ट बेल एंड इट वाज दिस वेरी सेंसेशनलाइज्ड केस. और इसमें दैट इज एन अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि मैंने सबसे फर्स्ट बेल लिया इस केस में, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट केस यार. कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस एलिगेशंस लगा दिए थे, बच्चों को अंदर कर दिया था, वहाँ पे एक इंसान का निकलना मुश्किल था. आज आर्यन का केस रिजेक्ट हुआ, नेक्स्ट डे मेरा था बेल था. एंड आई वाज डिसुएटेड बाय ऑल माय पेयर्स एडवोकेट्स. दे वर लाइक नो यू वेट, पहले आर्यन को हाई कोर्ट से बेल मिल जाने दो, आप अभी मत डालो, पहले आप उनको हो जाने दो, उनके ऑर्डर पर रिलाई करके हम पैरिटी लेंगे, हम ये क्लेम करेंगे. आई सेड नो, आई एम नॉट दैट पर्सन. मैं क्यों किसी के ऑर्डर पर रिलाई करूँ? लेट अदर्स रिलाई ऑन माय ऑर्डर. आई विल टेक माय चांस. मैं आई विल आर्ग्यू दिस केस एंड लेट मी गेट अ पॉजिटिव ऑर्डर. आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर इट. और माशाल्लाह वो हुआ. आई आर्ग्यूड द नेक्स्ट डे एंड माशाल्लाह से माय क्लाइंट गॉट बेल. उनको फर्स्ट बेल मिला और उससे हुआ एक बहुत बड़ा रिकग्निशन भी मिला मुझे, बिकॉज केस तो सबके ऑलमोस्ट मेरा उनका सिमिलर ही था. तो ये हुआ है. तो मतलब ऑब्वियसली ये तो मतलब जो आप बोल रहे हो, ये सब जो लोग होते हैं ना, ये सब 5 minutes ऑफ फेम के लिए दिल डू, बट उनको कुछ मिलता तो है नहीं. ऐसे तो लोग मतलब पीपल हु हैव नो गोल, नथिंग. बट उसी नाते अभी लाइक व्हाट, इनफैक्ट आई आल्सो हर्ड अबाउट समबडी फाइलिंग सम कंप्लेंट इन द बार काउंसिल फॉर माय पार्टिसिपेशन इन द बिग बॉस हाउस व्हेन आई केम आउट. एंड देन द मोमेंट आई केम आउट एंड आई इंक्वायर्ड इन द बार काउंसिल, कोई कंप्लेंट है ही नहीं. Some lawyer again for his 5 minutes of fame. I feel really pity, in my profession. That they filed a complaint that over your participation. That she's a practicing lawyer. How can she participate in the show? So I really feel pity because in my fraternity I expect cooperation. I expect कि इतनी तो यूनिटी हो हमें कि हम लोग एक दूसरे को प्रोग्रेस देख के मतलब जले ना. एटलीस्ट देयर शुड बी नो एनिमोसिटी टू दैट एक्सटेंट दैट यू फॉर योर 5 minutes ऑफ फेम विल फाइल सम कंप्लेंट, सम बुलशिट कंप्लेंट व्हिच इज नॉट इवन मेंटेनेबल. और है भी नहीं बार काउंसिल में ऐसा कोई कंप्लेंट, पर वो आदमी ने अपने किया अपने 5 minutes ऑफ फेम के लिए. सो आई रियली पिटी दीज पीपल, आई स्वेयर. But then up, because now that the journey is finished and the reason, because you never had a particular reason of winning the show, you only wanted कि ठीक है जहाँ मेरे को ये इस तरह के लोग जानते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि पैन इंडिया लोग मुझे और पहचाने. And I'm sure that you achieved that thing by being inside the house. Now how has life changed for you? How, or has it changed for you? Yes, absolutely, mashallah. Now मतलब it's as in मुझे life has changed only for the better because of my attitude towards the things and the ability to handle it.
see, it's not everything I'm telling you. It could have been actually it could have backfired also, because the moment I was out, people were saying कि अरे आपने तो legal profession में इतना बड़ा risk लिया है, you know, कौन करता है ऐसे, you know, judges है हमारे जो देखते हैं ये वो लोग. But माशाल्लाह everybody is appreciative of the fact that मैंने कुछ अलग किया. I'm unique. I have a unique personality. इसलिए I was offered as a lawyer to even enter the show. और मैंने अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करके मैं बाहर आके उल्टा अच्छे से काम में लग गई हूँ. एंड नाउ आई हैव अ बिगर गोल. नाउ बिग बॉस इज फार पास्ट थिंग फॉर मी. वो ऐसी चीज़ थी जो मैं इनफैक्ट 1 महीने के अंदर, क्या मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर ही भूल गई थी. और लोग भी बाद में, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो फॉर द पीपल ऑल्सो. मतलब हर कोई थोड़ी हर चीज़ बैठ के आ जाता है. पर बाद में अपने अपने काम पे लग गई. अब मेरे सारे काम के रिलेटेड न्यूज़ आते हैं बाहर. और अब मैं अपने फर्म को, SR के लीगल फर्म, वो लॉन्च कर रही हूँ, which is a bigger thing for me now, because now, you know, I'm very famous for being a criminal lawyer, because I have defended these, you know, clients in the most sensationalized cases जो बहुत famous हो जाते हैं. Going to that, I'm famous as a criminal lawyer, but I also deal with cases which are legal cases which are from other branches of law. Okay. Arbitration, civil, NCLT, and there are so many other variety, मतलब range of services which my firm will cater to. So it's very important that I also reach out to audience and I tell them that मेरा जो firm है SRK Legal, it's a boutique law firm जिसमें all under one roof मिलेगा, from NCLT to arbitration to civil to property to rare, everything all under one roof. Not just criminal cases, not limited to that. Of course, my specialization is there. I'm very well known for that aspect, but of course I deal with other cases, and I have a very efficient team now, which will be again, you know, effectively dealing with everything. So how does it feel being your own boss now? Mashallah, that I've always been. Like, I'll tell you honestly, you know, when I passed out at a very young age in this profession, it's not easy to carve your own niche. It's not Bollywood that you do one movie and you become an overnight star. It's not like that. In this field, you know, it takes years and years of hard work, and that's what I was told when I even joined the profession. I was told, you know, you'll have to work under a senior lawyer for at least for the next 10 years, and then probably you can start your own. But I never let these preconceived notions really, you know, affect me or destroy my perception towards how I would want to carve a niche for myself in the future. So when I started out, my father's also a very well-known, successful criminal lawyer. But the moment I passed out completed my degree, LLB, so he said, you do your masters and you can join my firm. I said, no, I will do my masters, but I'll not join you. I would want to create my own identity. And then I joined a lawyer for about 4-5 months. While I was with him also, there were other colleagues who were saying, now you have to at least stay here for 5 years. I said, no. That free bird, you know, मैं 4-5 months में I just started my own individual practice, which is a very risky thing, you know, that a young girl in a profession like this started her own thing. But I dared to think beyond, you know. That's what I always tell people. You should dare to think beyond and dream big. Only then you can achieve big. तो मेरे में वो था कि हाँ मैं कर सकती हूँ. That I have that capability, and वो होना बहुत ज़रूरी है. You know, to embrace the challenges that will come forth. So I had that, and the moment I started out also, then again there was these notions, you know, like, oh, you're a girl, they're so pretty, you know, you should stick to corporate only, don't diversify into criminal and all. There you'll deal with criminals, you know, and criminals and threats and everything. So that also is a part and parcel. Like I've said it on record, and there's this Haryana encounter case, जहाँ पे एक लड़की को मैंने छुड़ाया in that case, that, you know, where she was allegedly the one who actually got her gangster boyfriend killed. I was handling that case. I was getting threats every now and then, death threats, but that did not deter me from defending her. And tragically, even unfortunately she got killed after coming out. But when she came out, I was so happy for her life, for her future, for her prospective career. But that was a very unfortunate thing. Things did not turn in her favor. So all these things I see in day-to-day life, and of course even I get judged as a devil's advocate because I defend such people. But that's how even Ram Jethmalani, honestly, whom I really look up to. Yeah, even he used to be, you know, उनको भी name calling तो उनके साथ भी होता था. Especially these cases, like, you know, when I defended one person who was allegedly accused of cutting his girlfriend into pieces. Yeah. तो वहाँ पे तो बहुत media opinion थी, public opinion थी. But then when I actually get them out, then that's when, you know, these media perceptions also get somehow destroyed. They change and destroy. Yeah, exactly. So that's how it is. So I ensure कि मतलब मैं भी media perception, media trial की वजह से भी चीज़ें बहुत affect होती है. I'll tell you, as a student, when I was a student, जब
इंद्राणी मुखर्जी का केस हो रहा था, Yeah. यू नो इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़, हर रोज़ न्यूज़ में यही चलता था। और फिर मैं आई हैव इनफैक्ट एडमिटेड दैट इवन आई यूज्ड टू गेट कैरिड अवे, आई वाज जस्ट स्टूडेंट, तो सुन के मेरे भी माइंड में आता था कि पता नहीं शायद प्रॉब्ली हुआ होगा, ये हो सकता है, बट इट वॉज ओनली आफ्टर आई बिकेम अ लॉयर एंड विथ वर्ड ऑफ माउथ, विथ गुड वर्ड ऑफ माउथ, उसके मेरे काम को देख कर उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर हर केस, सो आई डिड नॉट टेक इट अप इंस्टेंटली, आई वाज नॉट लाइक ओह वाओ इट्स अ बिग केस so I'll take it up, because I've been handling high profile cases right from the beginning, the moment I started out. So I told her, you send your case across, let me go through it. And when I read the charge sheet and I saw all the discrepancies and loopholes, and I decided, okay, no, this case is nothing. Why is this lady rotting inside since 6.5 years? Her case, उनका केस बहुत बड़े बड़े lawyers के पास files हो के आई थी, and you know many unsuccessful attempts हो चुके थे, but when she appointed me hardly 3-4 months prior to her release. So when she appointed me, she saw that thing in me, and in fact it was very important for me also to have that faith in her innocence, to feel that okay, she's innocent. Only then I could have taken up the case, you know. मेरे morals और principles भी बहुत important है. But did you get to see the series that is made on her? Netflix, I'm a part of that series. I know, but then did you I'm very instrumental in that series. But did you made. see the result that's come out? What do you think that they have justified? See, honestly, always there will be opinions, you know, और हमेशा differing opinions तो रहेंगे, और उस basis पे हमारी life नहीं चल सकती, you know, as I always say, opinions सब इंसान के बारे में positive, negative होती है, but we can't get bothered about this because these people are not going to come and pay our bills. Ultimately, it's our life, और उनके बारे में भी judgments है, opinions है, but हमारा कोर्ट माशाल्लाह इस opinions पे नहीं चलता, वो facts पे चलता है और वो evidence पे चलता है. हमारे चार्जशीट में मैंने तो पूरी चार्जशीट पढ़ी है, मैंने पूरे depositions of witnesses पढ़े, तो मुझे पता है कि हमारा केस कितना strong है उनके फेवर में, in favor of our innocence. So इसीलिए तो आई एम रियली ग्लैड दैट आई बिलोंग टू प्रोफेशन जहाँ पे ओपिनियंस से काम नहीं चलता है, जहाँ पे फैक्ट्स और एविडेंस पे काम चलता है. तो इसीलिए तो अभी भी ओपिनियंस है. इनफैक्ट नाउ देयर आर ओपिनियंस. पहले तो ऐसा था कि लोगों का बहुत ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग था दैट शी हैज डेफिनेटली डन इट. नाउ देयर आर ओपिनियन दैट शी माइट नॉट हैव डन इट, शी मे बी इनोसेंट. तो एटलीस्ट मे बी एंड मे माइट में आ गया, राइट? हाँ, अब तो वो माइट और मे बी हुआ, बिकॉज नाउ शी हैज आल्सो पुट फॉर्थ हर ओन वर्जन, यू नो. उन्होंने अपना खुद का साइड भी रखा है. So it's crucial that her own version should also be out, because I mean, of course, she's presumed to be innocent until she's proved guilty. Yes. But here, media, thanks to media, wow, she's already held guilty. There are some anchors, you know, जहाँ पे मेरे debates में कभी-कभी बैठी हूँ, some news anchors have told me, your client who has burnt her daughter, who has killed her daughter, सीधा ऐसा बोल देते हैं जैसे she has just done it, you know. So there is a principle of criminal jurisprudence that a person is presumed to be innocent. तो आप मत बनो हमारी जुडिशरी का पार्ट, आप जज नहीं हो. Let the judiciary decide her fate, and let the judiciary decide whether she is innocent or guilty. By the end of the trial, everybody will know. But you know what I would say, Sana, that where on one side you experimented with your life by being a part of Bigg Boss, you are so dedicated and, you know, focused on your career. But in your free time, because I'm sure you also need a time to actually rewind and, you know, rejuvenate and get back to your... What do you do in your free time? Like, how is like a free day in the life of Sana Rais Khan? Free time, see, I travel. Everybody is aware. I've traveled almost half the world, and I again travel. Even next week, I'm traveling to London. Yes. या तो मैं ट्रैवल करती हूँ, वो मेरा पैशन है. ट्रैवलिंग इज़ माई पैशन. डांसिंग, एवरीबडी नोज आई एम वेरी गुड एट डांसिंग, बट आई डोंट, अभी फिलहाल तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं है दैट, यू नो, आई कैन एक्सप्लोर दैट साइड. एंड इवन आई एम अ गुड सिंगर ऑल्सो, तो मैं वो भी करती हूँ. मेरी कुछ हॉबीज़ है विच आई परसू दैट एंड ये वो. अदरवाइज, यू नो, चिलिंग आउट विथ गुड कंपनी, ये सब चीज़ें होती है. बट आई वुड से वन थिंग दैट, यू नो, बिग बॉस में जाना, उसमें अपनी ज़िंदगी को जीना और फिर उस घर से बाहर आ जाना और उसको भूल जाना, ये आई थिंक सिर्फ आपने दिखाया है ऑडियंस को, बिकॉज यू आर वन आउट ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जो बेयरली किसी मीडिया इंटरेक्शन या किसी इवेंट में, बिग बॉस से रिलेटेड इवेंट में या जहाँ उनके थ्रू कोई पार्टी या कुछ होगा, वो बेयरली वहाँ दिखाई दी हैं. जिन्होंने कोई अपीयरेंस किया हो, या वो कहीं स्पॉट हुई हैं, या उन्होंने बिग बॉस खत्म होने के बाद खुलकर बैठ के बिग बॉस के बारे में बात करिए. वॉज इट लाइक अ कॉन्शियस डिसीजन दैट यू मेड कि जर्नी खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी, या फिर दिस इज हाउ यू आर एज अ पर्सन? Both actually. That was a conscious decision also, and I am like that as a person also, because for me, see, I've mashallah, ever since I've started out, I have dealt with my मतलब case to case मैं अपने life जी रही हूँ हर रोज. That today this case, so I'm focusing on this case. The next day I'm focusing on this case. So I don't believe in living in the past, and I don't believe in
जस्ट यू नो मतलब वो चीज़ एक पीछे हट गई, खत्म हुआ, टाइम बिग बॉस खत्म, टाइम खत्म, वो टाइम, एंड देन जस्ट इमीडिएटली स्नैप आउट ऑफ इट, बिकॉज आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड आई डील विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड आउट देयर. फॉर माई लाइफ इज नॉट दैट लाइफ की ग्लैमर एंड ओनली हाई एक्शन, मेकअप, कट, हेलो हाई, वो नहीं है. मैं आई लीड अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ एंड आई सी द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ रिलेशंस आउटसाइड, यू नो, कि क्या होता है सच में. मैं तो इतने डाइवर्स रिलेशंस, उनके असलियत, ये सब चीज़ों को उलझते हुए वो सब चीज़ें मैं देखती हूँ. if that's the thing, तो जो घर में हमारा ये जो ट्रायो चल रहा था, you remember that love triangle, what was like, आप as a lawyer, what was your opinion to it? वो तो Not as Sana Raees Khan, as a lawyer I would say, because Sana Raees Khan has already given a verdict inside, but as a lawyer what was your reaction and what would have been your take on it? रिगार्डिंग ईशा, नो हाँ, ईशा विद लव ट्रायंगल तो एक वही था ना, ईशा समर्थन अभिषेक का, उसके बारे में मतलब यू नो एज अ लॉयर आपका कोई टेक था? टेक जो था, मैंने ऑन द स्पॉट ईशा को ऑन द स्पॉट इन द हाउस ओनली एक्सप्रेस्ड इट टू हर वेरी क्लियरली, बिकॉज शी टोल्ड मी दैट वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी विद अभिषेक. सो आई सेड दैट यू शुड हैव एक्चुअली टेकन एक्शन दैट टाइम इटसेल्फ, बिकॉज आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो और आप ऐसे मतलब बहुत टाइम तक हो, तो आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग कि आप साइलेंट रहो या उसके बाद आप एक्चुअली कंटिन्यू होने दो उस चीज़ को. बट माशाल्लाह से शी हैंडल्ड इट वेल इन द हाउस ऑल्सो, शी हैंडल द सिचुएशन. बट ऑब्वियसली वो थोड़ा बिजार था देखने को कि यू नो एक्स भी है, प्रेजेंट भी आ गया है. बट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं है, बिकॉज समर्थ के साथ भी अनफॉर्चुनेटली ईशा हैज एंडेड अप, things are no more, breakup हुआ, the whole drama and the fiasco happened. But now what next? Because you know, seeing how composed and how calm you are, and you are focusing on your firm, and you have your new firm to work on, you have new cases, as you were saying, that you know, Salman Khan say abhi bhi, are you in touch, or maybe any contestant that you are in touch who was like a good, who turned out to be a good friend to you? Contestant तो मैं most of the contestants से मैं टच में हूँ, but just because I don't attend the parties and all that, because I'm actually half the time I'm in Delhi in Supreme Court. मेरा ऐसा है कि मैं हफ्ते में 3 दिन तो मैं सुप्रीम कोर्ट में रहती हूँ, 2 दिन बॉम्बे हाई कोर्ट. मेरा बहुत अप डाउन होता है. इनफैक्ट बिग बॉस का भी जब बिग बॉस का ऑफर भी आया था, आई वाज इन सुप्रीम कोर्ट, आई वाज इन दिल्ली, एंड यू नो ऐसा था. दो आई एम ओरिजिनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो मैं टच में तो हूँ, कुछ लोगों से हूँ. बट मैं हमेशा बोला, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड तो मैं नवेद को मानती हूँ, हु इज इन लंदन, जो मेरा हाँ, जिसके साथ मैं एक्चुअली वेवलेंथ, will you be meeting him now that you're going there? obviously I'll meet him. We've already discussed about that also. The whole plan has been made. या वो तो है ही, क्योंकि वो एक्चुअली वो एकदम मेरे टाइप, मतलब वो मेरी वेवलेंथ उसके साथ बहुत मैच होती है. जैसे हम दो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल, वो उनका भी फार्मासिस्ट है, और वो मतलब ही इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड, कूल. वो भी आपने देखा कभी फालतू पॉलिटिक्स में नहीं घुसा गेम में, वो भी अपना चिल्ड था, अच्छा था. ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. सो ये है. बट वॉज एनी फीडबैक गिवन टू यू बाय सलमान खान? बिकॉज यू नो सलमान बहुत कम ओपिनियंस ऐसे देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत ही वैल्यूबल होती है. सो वॉज एनी फीडबैक गिवन टू यू अबाउट योर जर्नी और समथिंग? या माशाल्लाह, ही टोल्ड मी दैट इट यू डिड वेल. इनफैक्ट उन्होंने बहुत कम लोगों को बोला है, मुझे तो नहीं याद है कि मेरे अलावा किसको बोला, मुझे नहीं याद है. बट ही टोल्ड मी इवन व्हाइल आई वाज कमिंग आउट, ही सेड यू प्लेड वेरी वेल. एंड इवन आफ्टर दैट ऑल्सो, शो के बाद भी उन्होंने मुझे बोला दैट यू हैव डन रियली वेल, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑनेस्टली, एंड देन नोबडी एक्सपेक्टेड ऑल्सो दिस फॉर मी टू इवन गो दैट फार, बिकॉज आई हैड नेवर सीन द शो ए, एंड बी आई एम नॉट कंज्यूमर ऑफ दैट कंटेंट ऑल्सो. सो एंड टू गिव अ दैट काइंड ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो नॉट एन ईजी थिंग. बट मेरी पर्सनैलिटी है थोड़ी यूनिक, और मैं एक्चुअली फिर भी मैंने अपना बहुत अपने आप को बहुत कंट्रोल भी किया. मैं कभी कभी बाहर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाती हूँ, बट मैंने बहुत अग्रेशन अपना कंट्रोल भी किया, बिकॉज आई नो वेयर टू रिजर्व माई एनर्जी, एंड मुझे पता है कि कहाँ क्या किसकी कितनी तक ही रिक्वायरमेंट है और कितना बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, मुझे वो भी पता है. बिकॉज शो के बाहर आपकी दुनिया है सच में. दिस शो इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, एंड ऐसा तो नहीं कि शो पे ही ज़िंदगी टिकी है. और मेरे लिए तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए तो एक टाइम पास था बिग बॉस, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा करियर ही डिफरेंट है माशाल्लाह, जो है ही ऑलरेडी ज़ोरों शोरों से अच्छा है ही. सो आई नेवर नीड, इनफैक्ट आई टोल्ड द मेकर्स ऑल्सो दैट टाइम, आई डोंट नीड द शो, एंड मेरे लिए शो की रिक्वायरमेंट भी नहीं, बट मैंने कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक चेंज हुआ लाइफ में भी, एक रूटीन से. बट सलमान टोल्ड मी दैट, सलमान सर इवन टोल्ड मी दैट यू नो कि आप डांस में बहुत अच्छी है. इवन आफ्टर द शो ऑल्सो ही टोल्ड मी कि आप यू नो आपकी डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है. थरथराती, उन्होंने बोला थरथराती माधुरी दीक्षित, उन्होंने स्टेज पे भी बोला था कि आप डांस में बहुत अच्छी है. बोला आप पे एक्टिंग का कीड़ा है, मैंने देखा है. पर बोला है अच्छा, मतलब ये सब टाइम पास के लिए अच्छा है. Would we now see you ever in the future, in the coming future, trying your hand maybe in a dancing stint or maybe some dancing stint? तो I'm not so sure right now honestly, because हाँ वो तो नहीं,
but Acting or something would never, you see? I believe in never say never, honestly, because Okay. I will not just say okay nahi main kabhi nahi, and you know, because I never decided to do a reality show also in the future. I never thought of it. But कभी कभी situation ऐसी होती है, कभी you're destined to sometimes, and कभी you know, instinctively आप कुछ कर लेते हो, वो हो जाता है. पर ये मैंने हमेशा मेंटेन किया कि right after coming out of the house, मेरा अभी फिलहाल तो बहुत प्रोफेशन मेरा प्रायर कमिटमेंट है, और अभी मेरा फर्म बिल्डिंग मेरा प्रायर कमिटमेंट है, बिकॉज आई एम मोर, वो एंटरप्रेन्योर स्किल्स मेरे में ज़्यादा माशाल्लाह है, जो यू नो नाउ यू नो आई वांट टू एक्चुअली आई एम डॉनिंग दैट एंटरप्रेन्योर का हैट, एंड नाउ आई वांट टू बिल्ड माय फर्म ऑल्सो. मैं चाहती हूँ मेरा फर्म भी बहुत ग्रो हो, जैसे मेरे करियर की तरह मैं चाहती हूँ मेरा फर्म भी ग्रो हो, मेरा फर्म भी आगे बढ़े माशाल्लाह. एंड फिर वो एक बार हो जाएगा, एक बार मेरा वहाँ से माइंड थोड़ा हटे, मुझे फ्री स्पेस, फ्री टाइम मिले, सो देन वो एज अ हॉबी मैं कभी फ्यूचर में सोच सकती हूँ. बट अभी फिलहाल माई प्रायोरिटी जहाँ से मेन है, हाँ क्योंकि हाँ इज़ माई फर्म, बिकॉज दैट्स यू नो आई एम ऑन एंटरप्रेन्योर, और मैं वैसे ही अपनी लाइफ को और आगे ग्रो भी करना चाहती हूँ एज अ लॉयर, एज एन एंटरप्रेन्योर. Well, on that note, the last thing that I'm very keen to know is because आपने कहा कि आपके पापा भी लॉयर हैं, वो भी क्रिमिनल लॉयर हैं. When you were going inside the house, how did your parents react? And two, now that you're out, you have moved ahead and whatever, उनका क्या टेक था आपकी जर्नी के ऊपर? He is very proud of the fact that you know I pulled off even for that long, because he knows that you know I can't live with strangers like that. I'm like मतलब इतने हाँ मैं कैसी हूँ ना, मैं एक्चुअली बाहर की लाइफ में मैं कैसी हूँ सबको पता है, मेरे प्रोफेशन में भी सब जानते हैं मैं कैसी हूँ. मैं ज़्यादा किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, ना एंड आई वुड नेवर लेट एनीबडी इंटरफेयर इन माई प्राइवेट स्पेस. आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन इन रियलिटी. सो यू नो टू गो ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, एंड वो भी एक रिस्क है बहुत बड़ा, और वहाँ पे जाके यू नो एडवेंचरस चीज़ मैंने सडनली की, एंड वहाँ पे भी माशाल्लाह लाइक आई जब तक मैं थी तब तक ऐसा नहीं है कि आई हैड अ वेरी इम्पैक्टफुल जर्नी. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ी थी कहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं जब तक थी कुछ ना कुछ कंटेंट या समथिंग हाँ वो होता था. काफियों की जिंदगियों में काफियों सब हुआ है, वो तो मेरे से रिलेटेड ही हमेशा. कभी कुछ हुआ तो सना के वजह से ये हो गया, सना के वजह से वो हो गया, सना. कभी तो एक दो दिन तो ऐसा हुआ पूरा घर सना ये सब भी हो रहा था, मतलब ये सब चलता रहता था. I'm sure I think Sana is one of those contestants जो घर में कदम उन्होंने बाद में रखा, वो पॉपुलर पहले हो गई थी, उनके मीम पहले बनना शुरू हो गए थे, वो वायरल होना शुरू हो चुकी थी. बट आई वुड और मीम ऐसे होते थे कि मैं किसी को रोस्ट कर रही हूँ, वो मीम ज्यादा बनते थे. उनके डायलॉग्स हो गए, उनके एक्शंस हो गए, कहीं पे कोई हाथ पकड़ा हो गया, या कोई बैठी कॉन्वर्सेशन हो रही होगी ना, उस पे भी लिख के आ जाएगा नीचे क्या बात हो रही थी, देखो ये पॉलिटिक्स का. So there was a lot of things that went across with Bigg Boss, but what next? Because actually that is a very big deal that you know a high profile lawyer is suddenly doing gone a show like Bigg doing a Boss, show. totally. but mashallah I handled it well even after coming out also. mashallah you know मैंने उस चीज़ को अपने प्रोफेशन पे अफेक्ट नहीं होने दिया, because मैं हूँ फोकस अपने प्रोफेशन को लेकर. So it's about how everything, how you deal with things and how you handle things. Well, I think I'm so my father is my father also, like you know initially he was a little, of course he was apprehensive regarding me even going into the into that show. So he was, first even his reaction was like no, just like how my reaction was no. But you know but the team, Colors team is also very supportive. They were also like कि आपके father हाँ बोलते हैं तो ये पहले आप अपने father से permission लो. They were also very like हाँ you know very protective about these things. But my father was ultimately then later on he was fine with the fact that you know I did it. I just मतलब adventurous है. My daughter has done it, and you know and I conducted myself in such a dignified manner. So he is happy about the fact that मैंने कभी कुछ कैमरे के लिए कुछ भी चलना ऐसे you know ऐसी लैंग्वेज या कभी ऐसा कुछ you know गलत बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं दिखा. और मैंने कभी कोई ड्रामा भी नहीं किया. आई क्राइड ऑन द शो. आई शोड माई स्ट्रेंथ दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल. मैंने कभी कभी ये नहीं बोला ओके आई एम क्विटिंग द शो, आई वांट टू गो आउट ऑफ द शो. लाइक जब तक मैं हूँ मैं लाइक आई हैव अ बिंदास एटीट्यूड जैसी हूँ जब तक हूँ मैं. आई जस्ट शो माई रियल पर्सनैलिटी. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज हियर व्हेन द मोमेंट आई केम आउट. पीपल वर ऑलवेज टेलिंग मी यू वर द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट ऑन द शो. बिकॉज मेरे को कैमरा के लिए कुछ फेक नहीं किया मैंने कभी, क्योंकि और कभी मैंने आपने देखा ये भी नहीं किया कि इसके ज़्यादा फॉलोअर्स है बाहर तो इससे फ्रेंडशिप बनाओ, जो बहुत स्ट्रैटेजी होती है कंटेस्टेंट्स की कि दिस पर्सन इज़ वेरी फेमस और पॉपुलर बाहर ऑलरेडी, तो इससे मैं ज़्यादा बात करूँ तो मैं इससे ज़्यादा दिखूँ. मैं वो आपने देखा मैं बहुत मेरा बहुत अलग ही था बिहेवियर. इनफैक्ट जिनका कुछ मैं जिनसे गेट अलॉन्ग हो जाती थी, जिनके साथ मेरी वेवलेंथ मैच होती थी तो मैं उनसे ही ज़्यादा बात करती थी. मैं फिर और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इसके ज़्यादा फॉलोअर्स है कि नहीं बाहर, तो मैं वो करती थी. और फिर भी मैं टिकी. ऐसा नहीं है कि कुछ लोग तो आए थे बोल के कि नहीं हम इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाएंगे बिकॉज ये मेरे स्टेट के हैं. ये भी कुछ बहुत लोग ऐसे स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं अंदर, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज यूट्यूबर यूकेज कभी ऐसा. बट इनफैक्ट आप देखो तो मैं तो इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता मैं उनको बहुत रोस्ट करती थी, जबकि ही वाज ऑलवेज लाइक सना वी विल हैव अ गुड कनेक्शन ये वो. बट
did you meet him later on? Have you catched up with him No, later? you know, he's not even from Bombay. Yeah, but- Later on, I never got the time also to catch up with with him. Yeah. With him. In fact, वो तो कभी बिग बॉस के फिनाले में भी नहीं आए थे. हाँ, right. ये जो भी था उनका. बट ये हुआ था. बट मेरा कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी कि क्योंकि मैंने आपको बोला मुझे जीतने का इंटेंशन भी नहीं था और ऐसा भी मैं रियल में भी ऐसी हूँ नहीं कि मैं किसी का किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ूँ. मैं रियलिटी में भी बाहर भी ऐसी हूँ कि मैंने हर चीज़ माशाल्लाह इंडिपेंडेंटली की है. कभी आई नेवर सॉट एनीबडी सपोर्ट या इसलिए मैं अंदर भी आपने देखा कभी गैंगिंग अप या किसी का सपोर्ट का एडवांटेज लूँ या किसी से ऐसे करूँ कि अगर ये ज़्यादा फॉलोअर्स वाला है तो इससे ज़्यादा बात करूँ, इससे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाऊँ. वैसे मैं हुई नहीं. मैं जो हूँ बिंदास हूँ. आई डोंट गिव अ डैम एटीट्यूड. ओके, अगर तेरे फॉलोअर्स है बाहर होंगे, आई डोंट गिव अ डैम. आई डोंट लाइक यू लाइक दैट. एंड इफ आई विल रोस्ट यू, आई विल रोस्ट यू. इफ आई फील लाइक रोस्टिंग, आई विल रोस्ट यू लाइक दैट. So that's how I am. I showed my real. Well, I'm hoping that none of the contestants, fans, fan clubs plan to roast you or me now because we have talked so much in depth, but we did not say anything bad about any contestant. Yeah, because honestly, I feel कि ये सारे contestants, they're all from different fields. I'm from a different field. तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर की दुनिया में हमारा कोई competition भी नहीं है. वो तो बस एक गेम था. तो बाहर वी आर ऑल कॉर्डियल है. हमेशा हम कॉर्डियल ही रहेंगे. कभी कोई दुश्मनी ये सब नहीं हो सकती है किसी की बाहर सच में. और ना ही कोई वैसी एनिमोसिटी रह सकती है बाहर फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसलिए फैंस ऑल्सो आई मीन को इतना तो सेंस होना चाहिए कि वो जो अंदर हुआ वो अंदर ख़त्म हो जाता है. बाहर कोई ये सब चीज़ लेके बाहर आगे लाइफ में नहीं बढ़ता क्योंकि सबको अपने लाइफ में इतने हर रोज़ के डेली में इतने क्या क्या स्ट्रेस और इतना काम रहता है कि हम लोग भूल भी जाते हैं वो सब चीज़ें जो अंदर हुई. विद इन अ मंथ पीपल फॉरगेट. आई मीन आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई तो जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग विद इन अ वीक आफ्टर आई वाज आउट ऑफ द शो. हाँ, दैट्स हाउ प्रैक्टिकल आई एम बिकॉज आई टुक दैट गेम एज अ गेम. वो एक गेम है, वहाँ पे खत्म हुआ, वहीं पे खत्म करो, लाइफ में आगे बढ़ो. Well, I think I would say, Sana, that I am very curious of आगे क्योंकि just because you said never say never. We never know. Somewhere down the lane, we might be interviewing Sana for a nice web series or a nice movie or a music video. But until then, Sana, thank you for joining me here in Times Now. It was a pleasure having you here. Any parting words you want to tell to the audience who's watching you? I'll just say always follow your passion, no matter what. It's not just always about glamour and fame. Like for example, for me, just like how you said, regardless of the stint, ये entertainment का stint देखने के बाद भी I'm following my passion. जहाँ पे इतना glamour नहीं है, इतना ये नहीं है, but because I love my profession and I'm so passionate about it, and that gives me happiness. So for all those people who aspire to become whatever they want to become and whatever they just follow your passion because ultimately happiness you'll get and contentment आपको तभी मिलेगी जब आप अपने passion का काम कर रहे हो. Well, that is quite the advice. Well, thank you so much for joining us here. This is me, Vishakha Pandit, signing off, and this was Sana Raiz Khan only on Times Network. Stay tuned.